দিল্লির লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্তভার নিয়েছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা বা এনআইএ। হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, জম্মু কাশ্মীর সহ সারা দেশেই চলছে তল্লাশি বা তদন্ত। ডক্টর মডিউলের বাকি সদস্যদের খোঁজে ও বিস্ফোরক কোথায় লুকোনো রয়েছে তা জানতে চলছে কার্যত চিরুনি তল্লাশি। দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে 10 জনের, জখম হয়েছেন প্রায় 32 জন, কিন্তু মৃতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারত। বিস্ফোরণের পরপরই দুই অকুতভয় পুলিশ কর্মীর উপস্থিত বুদ্ধি ও তৎপরতার জন্যই কার্যত থমকে যায় মৃত্যু মিছিল। সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে সেই অবস্থায় একেবারে জমের মুখ থেকে ফিরে আসেন বহু মানুষ। দিল্লি পুলিশের দুই হেড কনস্টেবল অজয় কুমার ও থান সিং, এই দুজনেই কার্যত প্রাণে বাঁচিয়েছেন বহু মানুষকে। ঠিক কি হয়েছিল সেদিন? দিল্লি পুলিশের দুই হেড কনস্টেবল অজয় কুমার ও থান সিং অন্যান্য দিনের মতোই এলাকায় টহল দিচ্ছিলেন। মেট্রো স্টেশনের 4 নম্বর গেটের কাছে পৌঁছানোর পরই বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয়। যদিও তখন কি ঘটেছে বোঝার সময় ছিল না। চারিদিকে তখন ধোঁয়া অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছে, আর মানুষের আর্তচিৎকারে কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। রাস্তায় গাড়ির ভিতরে অসহায় মানুষগুলি পড়ে যন্ত্রণায় আতঙ্কে চিৎকার করছিলেন। সেই সময় নিজেদের জীবনের পরোয়া না করেই ছুটে যান দুই হেড কনস্টেবল অজয় কুমার ও থান সিং। হাতের লাঠি ছিটকে পড়েছে। চারদিকে সেই ভয়ঙ্কর হুলস্থুল পরিস্থিতি। কোন রকমে হাতে করে কোলে করে জখমদের তুলে রিক্সা, অটো, টোটো, হাতের কাছে যা গাড়ি পেয়েছেন তাতে করেই হাসপাতালে পাঠিয়েছেন তাদের। লক্ষ্য ছিল একটাই, যেভাবে হোক প্রাণে বাঁচাতে হবে মানুষগুলোকে। যতটা দ্রুত পারা যায় হাসপাতালে পৌঁছে দিতে হবে আহতদের। অ্যাম্বুলেন্সের জন্য অপেক্ষা করার সময় ছিল না, কারণ ওই পরিস্থিতিতে অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছতে অনেক সময় লেগে যেত। তথ্য বলছে বিস্ফোরণের মাত্র 12 মিনিটের মধ্যেই জখমদের হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। আর এই কাজটা সেদিন জীবনকে বাজি রেখে করে গিয়েছিলেন দিল্লি পুলিশের দুই হেড কনস্টেবল। নিজের পরিবার, নিজের জীবনের কথা ভাবেননি দুজন, কারণ তাদের মতে তারা এই পুলিশের উর্দিটাই পড়েছেন মানুষের সেবা করার জন্য, মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। কি বলছেন দিল্লি পুলিশের এই দুই হেড কনস্টেবল শোনাবো। এই হিরো, যাদের কথা হয়তো সেরকম ভাবে কেউ বলে না, তাদের বক্তব্য কি শুনুন। অজয় कुमार दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल यहीं खड़े हुए थे। अजय थोड़ा इधर से निकला, मैं रोड पार करके निकला। जैसे ही मैं आगे पहुंचा तो एक आवाज आई धमाका जैसा, पता नहीं क्या हुआ, हमें नहीं पता था उसमें क्या था। हम जैसे ही भागते हुए आए तो बहुत अफरा तफरी मची हुई थी, लोग बाग भाग रहे थे इधर से उधर, इधर से उधर। तो काफी लोग नीचे गिरे पड़े हुए थे और पटाखे धमाके होते जा रहे थे, यानी कि पटाखे की आवाज आ रही थी, क्योंकि गाड़ियों में सीएनजी थी कई जगह पर। मगर हमें डर, कई लोग कह रहे कि दूर हो जाओ दूर हो जाओ, मगर हमने कहा कि नीचे लोग गिरे पड़े हैं तो हमारा फर्ज था उन लोगों को बचाना, उन्हें फर्स्ट उपचार देना। तो हमने किसी की चिंता नहीं करी। तो चाहे धमाके आए चाहे कुछ भी आए, हमने सोचा अगर 5 लोगों की जान बचाकर हम अपनी जान अगर गंवा दें तो कोई चिंता वाली बात नहीं, मगर लोगों की जान बचनी चाहिए। और हमने सबसे पहले उन लोगों को उठाया और फर्स्ट उपचार के लिए उनको, चाहे रिक्शा मिला चाहे ऑटो वाले मिले, उनको बैठा के सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचाया, जिससे कि लोगों की जान बच सके। क्योंकि हमारा कर्तव्य है लोगों की जान बचाना और उनकी सेवा करना, और हमने कोई कमी नहीं छोड़ी उस चीज़ के लिए। हमारा फर्ज यही था लोगों को जो भयभीत हो रखे थे उनको संभालना, उन लोगों को समझाना कि चिंता मत करो, हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। और पब्लिक ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया, हमारे साथ खड़ी रही, क्योंकि जैसे हम आगे गए तो वो भी हमारे साथ आगे आए। तो मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा, कई लोगों की जो जान बचाई हमने। 15 से 20 लोग थे जिनको हमने गोदियों में उठा के हॉस्पिटल पहुँचाया। हमने किसी एम्बुलेंस का या किसी चीज़ का वेट नहीं किया। बस वो मंजर बहुत खतरनाक था, मैं बयान नहीं कर सकता। मगर ठीक है, भगवान ने एक शक्ति दी हमें और ताकत दी उन लोगों को हेल्प करने में, और हमने उनको। किस तरह का मंजर था? जैसे आपने कहा कि बयान नहीं कर, लेकिन फिर भी अगर देखा जो आपने, लोग आवाजें आ रही थी, कहीं सीएनजी ना फट जाए, कोई कहीं ना फट जाए, और लोग पड़े हुए थे तो कोई हाथ नहीं लगा रहे। तो हमने फटाफट से उनको लोगों को उठाया, चाहे कैसे भी उठाया, चाहे हम पूरे लथपथ थे, हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। हमें उठाया, फटाफट लेते जाओ, उठा के फटाफट भेजते जाओ। हर ऑटो में, हर रिक्शे के अंदर हमने एक एक बंदा बैठाया। मैंने कहा इसको सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचाओ, इसको फर्स्ट उपचार दो, जिससे कि इनकी जान बच सके। और आज भगवान की दुआ से चलो हम इतना तो कहते हैं कि हमने थोड़ी बहुत लोगों की जान तो बची, जिससे कि, क्योंकि 12 मिनट के अंदर हॉस्पिटल तक आप लोगों ने जो वहाँ पे जो विक्टिम थे उनको पहुँचा दिया था हॉस्पिटल में 12 मिनट के अंदर। क्योंकि जो पहली जो
जो कॉल हुई या जब आपने सुना धमाका उसके बाद 12 मिनट के अंदर ही वहाँ पर पहुँच गए थे आप लोग हॉस्पिटल में? सर हम 1 मिनट से पहले ही पहुंच गए थे वहां पर। धमाका हॉस्पिटल में बताते हैं कि हाँ 12 मिनट से पहले पहुंच गए लोग। और क्या कहते हैं, हमने किसी चीज का वेट नहीं किया। सबसे पहले हमने एक लेडीज निकाली उसके अंदर से, जो आग के अंदर बैठी हुई बिल्कुल वो हो रही थी। मैंने सबसे पहले उसे निकाल के गोदी में उठा के बाहर निकाला, फिर उसे बैठा के सबसे पहले बैटरी रिक्शे में बैठा के सबसे पहले उसे वहां हॉस्पिटल पहुंचाया। तो हमने कोशिश करी जितने लोग मिलते गए हम उनको सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचाते गए। हमें कोई एम्बुलेंस की, हम किसी चीज की वेट करते तो बहुत ज्यादा लेट हो जाते हम। तो हमने सबसे पहले हमारा ये दायित्व था कि लोगों को फर्स्ट उपचार के लिए पहले हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, और इसमें हमने उन्हें हॉस्पिटल सही सलामत पहुंचा दिया था। দিল্লি পুলিশের আরেক হেড কনস্টেবল থান সিং, তিনিও সেই সময় অন্য সবকিছু ভুলে কিভাবে সেই মানুষগুলোকে, আহত একেবারে জখম বিস্ফোরণে মানুষগুলোকে হাসপাতালে পৌঁছানো যায় সেই চেষ্টাই করে গিয়েছেন। থান সিং এর কি বক্তব্য শুনুন। डेली जैसे रूटीन में पेट्रोलिंग के लिए हम निकलते हैं, अपना टाइम था हमारा पेट्रोलिंग के लिए। अपने यहाँ से डंडा लेके बाहर की तरफ पेट्रोलिंग के लिए निकला था। एक आदमी मिला था मुझे, हैंडीकैप था, उससे मैं कंटिन्यू बातचीत करता हूँ। उससे मैं ठीक ठाक है सब, और उससे बातचीत करके 10 कदम आगे ही चला था। 4 नंबर मेट्रो पे पहुँचने से पहले ही एकदम तेज़ आवाज़ आई, धमाके की तेज़ आवाज़ आई, जिससे पूरा आसमान में कुछ नहीं दिखाई दे, अंधेरा अंधेरा सा हो गया। तो मेरे हाथ में जो डंडा था वो काफ़ी दूर जाके गिरा। तो मैं वापस भागा चौकी की तरफ, देखा घायल जितने थे, घायलों को उठाया। सबसे पहले घायलों को उठा कर हॉस्पिटल के लिए, एम्बुलेंस उस टाइम तक नहीं आई थी, थोड़ी लेट आ गई थी, एम्बुलेंस बाद में आई थी। ई रिक्शा, ऑटो जो भी मिला हमने उसी में बैठा के हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया। एक गाड़ी में बंदा फंसा हुआ था, उसको बाहर निकाला, गाड़ी की खिड़की तोड़ के बाहर निकाला उसको। फिर हॉस्पिटल में आम पब्लिक ने मदद की, ऑटो में बैठाया और फिर हॉस्पिटल के। तो सबसे पहले आप लोग पहुंचने वाले थे वहाँ पे? जी, मैं और थान सिंह मौके पे सबसे पहले आ गए थे। बाकी कुछ ही समय में 20-30 सेकंड के अंदर हमारा सारा चौकी का स्टाफ बाहर मौके पे पहुंच गया था। उस वक्त क्या मंजर था अगर आप जो आपने अपनी आंखों से देखा? उस टाइम पे सर लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें बहुत आ रही थी, लोगों को चिल्लाने के लिए आवाज़ें इतनी निकल रही थी, चीख रहे थे। सभी को पहले दूर करके, साइड करके हटा के लोगों की हेल्प से ही उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? एक तरफ धमाकों की आवाज़ और एक तरफ लोगों की चिल्लाने? सर जो ये वर्दी पहन रखी है सर, वर्दी की ताकत है, जो हम अपना सारी चीज़ें भूल के उनको, घायलों को उठा के और हॉस्पिटल के लिए चले गए। वर्दी में ही इतनी ताकत है कि। একবার ভেবে দেখুন, এই অজয় কুমার এবং থান সিং তারা নিজেদের জীবনের কথা না ভেবে এই বিস্ফোরণে তাদেরও প্রাণ চলে যেতে পারতো। তাদের বাড়িতে তাদের পরিবার রয়েছে, বাবা মা রয়েছে, তারাও অপেক্ষা করে রয়েছেন বাড়িতে, তাদের সন্তান তাদের মানে হয়তো ভাবছেন যে আমার স্বামী ফিরে আসবেন এই আশায়, কিন্তু তারা সেই রকম কিছু পরোয়া না করে সেইখানে আর্ত মানুষগুলোকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন। তারা সত্যি কথা বলতে আমাদের রিয়েল লাইফ হিরো, যারা একদম সেই গ্রাউন্ড জিরোতে নেমে তারা তৎপরতার সঙ্গে কাজ করেছেন। থান সিং এবং অজয় কুমারের মতন মানুষকে স্যালুট জানায় আজ তাক বাংলা। আপনারা কি বলেন জানাতে থাকুন, দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।